Hello and welcome to another exciting episode of Spotlight series. And today we have a special episode for the MSMEs, the young entrepreneurs hunting for new opportunities and wondering where to go, how to grow, where are the government policies which helping them. For that, we have with another exciting personality which take you to the path to the success. Welcome to the Spotlight series, sir. And would you please introduce yourself? Hello, everybody. This is Mukund Kulkarni. I am Chairman Core Group on Quality and Technology, CII MSME Council. It is a national council working in the interest of micro, small, and medium enterprises. My first question to you, sir. What are the MSME's policies? See, first, try and understand more than policy. What makes MSME successful is agility of MSME, cost competitive of MSME, and the speed with which the entrepreneur respond to the opportunity makes us successful. That is the first part of it. Policy comes secondary. Of course, policies are important, but like getting loans where credit guarantee is taken by Government of India is one of the good policies. If you want to promote yourself in a group, then you get money for the purpose of exhibition. That is another very good support. State governments and central governments have incentive schemes that becomes the additional support. And when you are working on some technology intervention in your organization, there is a technology support scheme you get from get funding for that. Apart from that, for skill development, for ability development, for leadership development, for management development, there are various initiatives. Like there was a very good program called Lean Clusters. Those kinds of programs are initiated for MSME, and these are the government support that MSME gets from either state government or a central government. राइट सर, जैसा आपने कॉन्फ्रेंस में बताया और मिनिस्टर्स के सामने आपने अपनी बात रखी, जो एक प्रोग्राम था जो पहले सरकार में आया था और कुछ दिनों के बाद वो प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। उस प्रोग्राम के बारे में आप थोड़ी-सी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे? मैं जिस प्रोग्राम का समिट में जिक्र किया वो है लीन लीन क्लस्टर। एक्सपेक्टेड ऐसा था वो स्कीम में कि 8, 9, 10, 12, 15 MSME एक साथ आए, एक कंसल्टेंट डिप्लॉय करे और पूरा लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करे। उसमें 25% money is to be consulting fees has to be brought in by members and 75% was paid by Government of India. तो उस पे उसका बेनिफिट ये हुआ कि कम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वर्किंग ऑन सिस्टम, रिजेक्शंस कम हो गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गया, हाउसकीपिंग नीटनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गॉट इम्प्रूव्ड, ऑर्गेनाइजेशन बिकेम प्रेजेंटेबल और ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को मैं कंपनी कैसे मैनेज करना चाहिए इसका डैशबोर्ड का पता चला, एंड दैट वाज रियली यूजफुल। इनिशियली 100 क्लस्टर्स वेयर टेकन एज पायलट और उसके बाद 1200 क्लस्टर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। जो मिनिस्टर जी के सामने हमने बात रखा कि हमने कहा कि वो स्कीम, वो फॉर्मेट बहुत सक्सेसफुल था, तो अब जमाना चेंज हुआ है। ऑन द लाइंस ऑफ लीन क्लस्टर आप डिजिटल क्लस्टर का सिस्टम इंप्लीमेंट करो जो कि ये एमएसएमई नेक्स्ट लेवल का टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सके। दैट वाज आवर डिमांड इन फ्रंट ऑफ मिनिस्टर। What are the current challenges which are facing MSMEs in the industry? सी, एक बात समझ लेना चाहिए, जो कोई भी एमएसएमई में आना चाहता है, मेनली 90% ऑर्गेनाइजेशंस को खुद का प्रोडक्ट नहीं रहता है। वो किसी टीयर 1 को या ओईएम का कंपोनेंट डेवलपमेंट या असेंबली डेवलपमेंट करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। तो कोई भी एमएसएमई अपने टीयर 1 या ओईएम पे डिपेंड रहता है और मार्केट फ्लक्चुएशन सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट करता है। ये एमएसएमई का पहला चैलेंज है। दूसरा, आपको अच्छा लगे या न लगे,
कोई भी यंग लड़का या लड़की एमएसएमई में जॉब नहीं करना चाहती। हर एक को मल्टीनेशनल में काम करना है, हर एक को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो हम एमएसएमई एक एक्सपेरिमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। हर टाइम हम फ्रेशर को रिक्रूट करते हैं, उसको 2 साल ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उसमें से 30-40% लोग निकल जाते हैं। सो ट्रेनिंग द पीपल एंड डायनामिक्स ऑफ द रिसोर्सेस इज आवर सेकंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज जिस पे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि छोटे उद्योग को उसका कस्टमर पेमेंट बहुत डिसिप्लिन से नहीं देता है। लेकिन अब जो एक्ट वेरी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कर रहा है गवर्नमेंट कि किसी को 45 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो हम कंप्लेंट लेके जा सकते हैं और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला मैंने जैसा बोला कि वी आर डिपेंडेंट ऑन लार्ज कस्टमर्स, तो डायनामिक्स का इम्पैक्ट आता है। हमारी मैन पावर वल्नरेबल है क्योंकि उसको अच्छी जगह सर्विस करनी है। और तीसरा जो है तो कैश फ्लो का इशू है। ये 3 इश्यूज हमें एमएसएमई में फेस करना पड़ता है। दैट इज द रेडीनेस ऑफ माइंड इफ यू वांट टू बी इन एमएसएमई यू शुड हैव। What are the new forthcoming program to be launched in India for MSMEs? Would you like to put a light on it? If you see the recent budget, more than any specific program, what government is planning to make credit available. मैंने आपने सुना होगा कि वो मुद्रा लोन है, वो माइक्रो वाले को सपोर्ट करता है। या विलेजेस में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो बहुत ही छोटे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है। 5 लाख वाला क्रेडिट कार्ड का सिस्टम निकला है, उससे हमारा इट इज लाइक अ कैश क्रेडिट। और जो सिक्योर्ड लोन है जिसको क्रेडिट गारंटी मिलती है गवर्नमेंट से, तो उसका लिमिट डबल कर दिया है। अभी हमें 2 करोड़ का लोन छोटे इंडस्ट्री को, 5 करोड़ लोग उससे 5 करोड़ का लोन उससे बड़ा, और 20 करोड़ का लोन और ऑर्गेनाइजेशन है तो आसानी से मिल सकता है। So availability of credit is a major change which this government is bringing. Would you like to share one case study which you really having successful fully done and you have been proud of it? बिल्कुल रिसेंट केस स्टडी लेता हूँ कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद से नाम का शहर है, अभी उसको छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। हम इंडस्ट्री एज एसोसिएशन वहाँ पे स्टार्टअप चलाते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर। तो 4 साल पहले एक स्टूडेंट वेरी डिटरमाइन कि मुझे फार्मर्स के लिए काम करना है। जो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसका एक ट्रॉली बनाया था, एक मैनुअल सा ट्रॉली था, फिर उसमें ऑटोमेशन आया, अभी सोलर बैटरी ऑपरेटेड आया, और नाउ ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और आपको बताते समय मुझे अच्छा लगता है कि लास्ट वीक जब बिल गेट्स फार्म रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखने इंडिया आए थे, तो उन्होंने उसका जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का ट्रॉली है, मिस्टर बिल गेट्स ने आप अपने हाथ से उसको खेतों में चलाया। सो दैट बिकम्स प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे शहर का एक यंग एंटरप्रेन्योर ये लेवल पे जाता है कि बिल गेट्स जैसे आदमी को लगे कि उसका प्रोडक्ट अपने हाथ से चलाए। दैट इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी आई ट्रीट that I have seen in the recent past. My last question to you, sir. Would you like to share one book or movie which you think that it will help young entrepreneurs out there? एक स्पेसिफिक बुक ऐसे नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन एक थॉट प्रोसेस देके जाता हूं। पर्सनली मैं ऑटोग्राफ बायोग्राफीज पढ़ना पसंद करता हूं। जब कोई एंटरप्रेन्योर, कोई सक्सेसफुल आदमी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखता है, तो उसका जर्नी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें ट्रिगर होती है कि हम बोलते हैं हाँ मेरा ये क्वालिटी इस आदमी के जैसा ही है। सो दैट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू, दैट इज वन। दूसरा, पर्टिकुलरली मैं सेकंड चीज फॉलो करता हूँ कि मैं लोगों के इंटरव्यूज यूट्यूब पे सुनता हूँ व्हेनेवर आई हैव अ फ्री टाइम। और जब मुझे लो लगता है कि आई हैव लेस एनर्जी टुडे, सो आई लिसन टू इंटरव्यूज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, पर्टिकुलरली रतन टाटा सर के इंटरव्यूज सुनता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर के इंटरव्यूज सुनता हूँ, मानिक शॉज, फील्ड मार्शल मानिक शॉज के
इंटरव्यूज देखता हूँ, उससे करे जाता है. व्हेनेवर आई फील लो, नॉर्मली आई फॉलो दीज 3 पीपल. तो मेरा रिकमेंडेशन है, आपको जो पसंद आए वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ो. कोई लीडर्स के इंटरव्यू सुना करो. दैट गिव्स यू स्पिरिट, दैट गिव्स यू पाथ, दैट गिव्स यू डायरेक्शन. Thank you so much, sir. Appreciate your time, and it's been pleasure to talking to you. Stay tuned with Club TV for more business sites. Wish you all the best.